Hi, what's your name? My name is Mark. Where is this from first? Let me see. Pyara Hindustan. Pyara, Hindustan. Nice to meet you all. Where are you from? I'm from London. Namaskar. Namaste, namaste. Namaste. How is Delhi? Delhi, it's a nice buzzing city. We obviously had the G20 summit, so it was a little bit quiet for us, but we've been traveling, so we've gone Agra, Jaipur, so we've done the triangle, so it's been fun. What is your opinion about G20 hosted by India? It's amazing for the country. It's very, very good for the country. It's good for our economy. It's good to show that we're leading the way in global politics as well. Like, we're making our stance there. And economy wise, it should be good for India overall, for all the people of India. Now we are looking forward for making a big corridor, India, Middle East, Europe corridor. Yeah. What's your opinion on that? It's still good growth for the country. Like, I think, are you referring to like BRICS and things like that? Obviously, they've got a lot of collaborations now with a lot of other countries. I think Brazil, Russia, India, China, all of them are now obviously, they've got a lot more trade going on between them, a lot more like sort of political addresses, I guess. Like they've obviously got communication between each other now. They're obviously going to trade going forwards. It's great for the country. This is going to be G21 from G20 because African Union is also involved in the G20. So, what is your take on that? I've been to Africa, another beautiful country. That's the motherland as well for us. Even better, like I said, it's only good for all the countries involved. It's good that we unite and in certain ways going forward, especially when it's to do with sort of global issues, especially like global warming and everything else as well in between. Last two comments. One, what about friendship of Rishi Sunak and Narendra Modi? I don't know what their relationship's like. I can't really speak about it, but I'd hope India and the UK could have a good relationship as well, because obviously history-wise, it's been a bit up and down, but generally over the last sort of couple of 100 years, we've had a good relationship. Like the Indian community is huge out there as well. Can I say a big shout out going out to Southall? That's where I'm from. So there's like a huge community there, as there is worldwide now. And like obviously, even still for me, it's like I haven't been back in 12 years. So it's interesting for me to come back and see like the economic growth of the country and the work that's going into the country. So it's all on a good path, at least. It's on a good path. Last comment. What about Narendra Modi? When you heard Narendra Modi, what's come in your mind? Okay, look, there's a good balance of good comments and bad comments, and I'm sure people have it. That's politics, unfortunately. There's always going to be good and bad, but I think generally for like the stability of the country, like it's not too bad at the moment. Like I said, I've been Agra, Jaipur, we've done Delhi, and I've met any kind of person, every kind of person you could think of, different people, different regions, different religions, and like everyone's living their life pretty happily in India at the moment. Like that's what I've seen for my own eyes. I know there's like places where they haven't got a lot of money, but they still live a happy life. So hopefully, like things will only get better. Like that's the prayers and wishes for the country, and hopefully Narendra Modi is taking us in a right direction, and whoever precedes him will continue to do the same for the great country of India. Thank you so much for your kind words. Thank you. It's one प्यारा हिंदुस्तान. रोहन कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में कहाँ के रहने वाले हैं? कृष्णा नगर सिटी है। कृष्णानगर सिटी से। क्या लग रहा है सर, 24 चुनाव आ रहा है केंद्र में, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन आएगा? मैं तो यहाँ घूमने के लिए, वैसे कैसे पता है कौन? नहीं, अपनी आपकी राय प्रधानमंत्री का पूछ रहा हूँ। वो मैं ठीक नहीं जान सकता। अभी नहीं बताऊंगा। हाँ। आपका? मेरा नाम जगदीश है, कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक से। कर्नाटक के रहने वाले, घूमने आए हैं दिल्ली? हाँ, अच्छा सर, क्या लग रहा है अभी चुनाव आने वाला है, कुछ समय बाकी है, क्या लग रहा है 24 में किसकी सत्ता आ रही है? अच्छा लगता है सब राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट थोड़ा थोड़ा ज़्यादा से अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो अच्छा लगता है। मैं राय जानना चाह रहा हूँ 24 में किसकी सरकार लग रही है आपको? 2020 में अभी जो अगले साल लोकसभा चुनाव है 2020 में 24 अभी जो चुनाव है लोकसभा, ओके, राहुल गांधी का। राहुल गांधी का लग रहा है? हाँ, अच्छा, और जो विदेश में जा कर के वो बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी, लोकतंत्र दबा दिया, दबा रहे हैं, तो अभी हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनी, तो अगर लोकतंत्र पर दबाव बनाया जा रहा है फिर कांग्रेस सरकार कैसे जीती, कांग्रेस कैसे जीती कर्नाटक? इससे यही भी कांग्रेस आता है जब 2024 में
इसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर कैसे लोकतंत्र को दबाया जा रहा? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? इंद्रापुरम। अच्छा, इंदिरापुरम यहीं के रहने वाले। सर क्या लग रहा है, अभी G20 शिखर सम्मेलन जो है वो समाप्त हुआ और हमने देखा पूरी दुनिया के नेताओं ने आकर के बात की भारत के बारे में। अब सभी पार्टी जो है अपने आगे ट्रैक की तरफ बढ़ चुके हैं 24 के लिए। आम जनता होने के नाते आपको क्या लग रहा है सर 24 में क्या होगा? वो तो जनता डिसाइड करेगी, हमें क्या बताना है। आपकी अपनी राय, कौन अच्छा है? सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, कोई सारे अच्छे हैं, कोई सिंगल कुछ नहीं नहीं, कोई नहीं बताना। ठीक है, आपका क्या नाम है? प्राची। आपकी कोई राय, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री अगले साल? अब जिसे जनता चुने। जनता चुने। आपकी अपनी कोई पर्सनल राय कि हाँ इन सब नेताओं में ये थोड़े ठीक है? हम लोग यहाँ रहते तो है नहीं, हम लोग बाहर रहते हैं, तो आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कौन सी जगह रहते हैं? यूएस में रहते हैं। यूएस में रहते हैं। यूएस का भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी का, भारत की फॉरेन पॉलिसी की काफ़ी बात हो रही है कि हाँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मान सम्मान बढ़ा। आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही सही। ठीक चल रही है? हाँ, ठीक चल। धन्यवाद। आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे वो 24 चुनाव को लेकर के, उनकी क्या राय। सर क्या नाम है आपका? रजदानी। कहाँ के रहने वाले? बरेली यूपी। बरेली यूपी के। क्या लग रहा है सर 24 में किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की बनेगी जी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आने चाहिए मोदी जी? ये तो मतलब कुछ एक दो कारण देखे होंगे ना कि हाँ ये इसीलिए मोदी काम अच्छा कर रहे हैं। यूपी में तो खैर ज़्यादा अच्छा हो रहा है काम। यूपी में ज़्यादा अच्छा। हाँ, यूपी में तो ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि हम बन जाएं। हाँ, नहीं बनेगी तो मोदी की आएगी, तो मोदी की ही सरकार आएगी मोदी सरकार। योगी सरकार यूपी में, और यूपी में योगी सरकार। हाँ यूपी सरकार। मैम आपका क्या नाम है? हसीन जहां। आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? अखिलेश की। अखिलेश यादव की सरकार केंद्र में, पीएम? केंद्र में तो पीएम कोई भी आए, काम अच्छा होना चाहिए। कोई भी आए, काम अच्छा होना बस महंगाई अच्छी हो, नौकरियां निकलें, चाहिए, रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़े, बस और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद अली, कहाँ के रहने वाले? अमजद। हरियाणा मेवात। हरियाणा में बात करें, किसकी सरकार लग रहा है अगले साल? भाई हरियाणा में तो कांग्रेस खट्टर हुड्डा सरकार आ रही है। यहाँ प्रधानमंत्री तो यहाँ देखते हैं भाई, अभी तो लगता है कि 5 साल और रहेगी मोदी जी। 5 साल और 24 से 29 मोदी हाँ हाँ हाँ, कंफर्म है? कन्फर्म भी तो रहेंगे। लग रहा माहौल जैसा देश का, तो भी रहेंगे। माहौल लग रहा है देश का। ठीक है, आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे 24 चुनाव को लेकर के, क्या कहते हैं वो। सर क्या नाम है आपका? नाम मान सिंह, कहाँ के रहने वाले? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर के रहने वाले। सर क्या लग रहा है, अभी चुनाव बहुत नज़दीक आता जा रहा है, 24 में कौन कैपेबल लग रहा है आप? हमको इंडिया। इंडिया? जी। अच्छा, कौन नेता उसमें लग रहा है प्रधानमंत्री पद? अब प्रधानमंत्री जो भी बने, लेकिन इंडिया मुझे ज़्यादा सही लगता है बीजेपी से। जेडीयू ने आज क्या है कि नीतीश कुमार को बनाया जाए। नीतीश कुमार भी अच्छे विकल्प हैं। कांग्रेस चाह रही है राहुल गांधी, डीएमके चाह रही है स्टालिन, उद्धव ठाकरे गुट चाह रहा है उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी चाह रही है अरविंद केजरीवाल, टीएमसी चाह रही है ममता बनर्जी। देखिए, कोई कुछ भी चाह रहा हो, हम वो नहीं, लेकिन एनडीए सरकार में मुझे सबसे ज़्यादा डिमेरिट लगती है कि हम अगर किसी पारिवारिक में हमें परिवार का विकास रोकना है, तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम उस घर में फूट डाल दें। जो इस समय लोगों के बीच में दूरी बढ़ाई जा रही है, जैसे आए दिन धार्मिक मुद्दे कोई ना कोई। ये जो भी स्टालिन ने कहा, जो ए राजा ने कहा, जो भी प्रियंक खड़गे ने कहा, उनको कैसे देखते हैं? उनको भी जैसे विचारों की और धर्म की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतभेद हैं यहाँ पे। वो सब कमेंट्स तो INDIA की तरफ से आए। INDIA की तरफ से आए, लेकिन पहले भी एनडीए की तरफ से भी आए दिन कभी अयोध्या को लेके, या जैसे देखिए अभी ये मूवी को लेकर। राम मंदिर तो हमारा इतिहास है, उसको बोलने में क्या, क्यों हम घबराते हैं राम मंदिर के बारे में बात? घबरा नहीं रहे हैं, राम मंदिर हमारी भी आस्था है। मैं कोर्ट से मिला है, तो उसमें कहाँ से कन्फ्लिक्ट है? हम केवल पॉलिटिकल व्यू को कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल एजेंडा एक बनाया जाता है हर मुद्दे को लेके। वो तो यहाँ से फूट डालने की राजनीति तो यहाँ डीएमके से, वो तो सीधे खत्म कर देने की बात कर दे रहे कि मिटा देंगे बिल्कुल। नहीं, तो ये इस तरह के जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं किसी के भी द्वारा, मैं उन सबको नकारता हूँ। वो दिए गए, उसके बाद माफ़ी जब उनसे कहा गया माफ़ी मांग, कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं अपने स्टेटमेंट्स पर टिका हूँ। भी बदतमीजी है, मैं धार्मिक। जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनके बेटे हैं, वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उदयनिधि स्टालिन, और इस INDIA गठबंधन में शामिल हैं। क्या नहीं ऐसी स्टेटमेंट से क्या INDIA कमज़ोर नहीं होगा? बिल्कुल कमज़ोर होगा, क्योंकि हमको चाहिए कि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जहाँ हमारे 7 धर्म कम से कम रहते हैं, अनेकता में एकता ही हमारी विशेषता है,
उस परिप्रेक्ष्य में हम सभी को लेके चलने की कवायद करें, न कि हम किसी भी वर्ग को नाराज़ करके या छोड़ के। अगर हम किसी को छोड़ देंगे तब भी हमारा विकास कभी भी नहीं हो पाएगा। जी, धन्यवाद।